So now we start the fifth unit. The fifth unit is all about the system compensators. कौन से compensator होते हैं? So a feedback control system that provides an optimal performance without any necessary adjustment is rare. So in order to build a control system, we know that the proper modification of the plant of dynamics may be a simple way to meet the performance specification. Means you have to modify the plant to get the optimal performance. Okay. So this, however, may not be possible in many practical situations because the plant may be fixed or not modified. Not We cannot modify it. Then we must adjust the parameter other than those in the fixed plant. So this parameter adjustment is something called the compensation. Okay. So it's just a theory, just go through it fastly. So it is then required to reconsider the structure of the system and redesign the system. The design problem, because those of improving system performance by in insertion of a compensator, or we can say insertion of a compensator. Okay. Compensator, what is a compensator? A compensator is a additional component or circuit that is inserted into a control system to equalize or compensate for a deficient performance. सो इट कंपनसेटर क्या होता है? कंपनसेटर इज ए एडिशनल सर्किट, एक एडिशनल सर्किट हम इंसर्ट कर देते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, सो दैट द आउटपुट कैन बी स्टेबलाइज और दैट कैन बी ऑप्टिमाइज. ठीक है, जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए, जो डेफिशिएंसी है परफॉर्मेंस में, उसको रिड्यूस करता है कंपनसेटर एंड गिव दी ए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. ठीक है, बट द compensator is always a additional component or additional circuit which is to be introduced or which is to be inserted in the control system. Necessity of compensator, क्यों जरूरत है compensator? Compensator used to increase the stability, it used to increase the speed of the system, it used to remove the steady state error. ठीक है, error हटाने के लिए. Thus the design of a system is concerned with the alteration of frequency of response or the root locus of the system in order to obtain the suitable system performance. इसका मतलब क्या है? Then you can design the system in frequency domain using the board plot, or you can use the root locus technique to design the compensator in the time domain. ठीक है. Compensation scheme most commonly used for feedback control system. तो कंपनसेटर अभी तक क्या हुआ? कंपनसेटर इज ए एडिशनल एलिमेंट और एडिशनल सर्किट which is inserted in this control system to remove the deficiency and to optimize the control system. ठीक है. कंपनसेटर कितनी तरह के होते हैं? द कंपनसेटर ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स, सीरीज कंपनसेटर एंड पैरेलल कंपनसेटर. एक कंपनसेटर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंपनसेटर. अगर मैं इसे हटा दूं तो मैं अभी तक इस चीज की बात कर रहा था पूरी सारी यूनिट्स में. ठीक है, कि एक मेरा ये फीडबैक सिस्टम है, ये फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है जीएस. ठीक है, ये फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है एचएस. ठीक है, ये इनपुट है आर, ये आउटपुट है सी. मैं इसकी बात कर रहा था अभी. अब क्या किया मैंने? आई इंट्रोड्यूस ए कंपनसेटर सर्किट ऑल्सो. ये कंपनसेटर सर्किट मैंने इंट्रोड्यूस किया. सो दिस इज द सीरीज कंपनसेटर, क्योंकि इसे फॉरवर्ड पाथ के साथ सीरीज में लगाया गया है. एंड दिस इज द पैरेलल कंपनसेटर बिकॉज इसे फॉरवर्ड पाथ के साथ पैरेलल में लगाया गया है. ठीक है. So structure of compensator, according to the way of compensation, the compensator can be classified into following categories. Structure कैसे कैसे बनाया जा सकता है? सीरीज और कैस्केड कंपनसेटर, देन फीडबैक कंपनसेटर, फीडबैक में लगाया गया है. देन योर कैस्केड एंड फीडबैक, सीरीज में भी लगाया है और फीडबैक में भी लगाया है. ठीक है. देन योर फीड फॉरवर्ड कंपनसेटर. फीड फॉरवर्ड कंपनसेटर इज जिसमें इनपुट के बाद डायरेक्टली लगाया गया है. यहाँ पे इनपुट के बाद नहीं डायरेक्टली लगाया गया था कैस्केड में. इनपुट के बाद जब हमारा एरर सिग्नल जनरेट हो रहा था, देन हमने कंपनसेटर लगाया था. फीड फॉरवर्ड में हमने जस्ट इनपुट के बाद कंपनसेटर लगाया.
एंड देन योर डिस्टर्बेंस कंपनसेटर। इस केस में आप डिस्टर्बेंस कंपनसेटर के केस में एक एक्सटर्नल इनपुट यूज कर रहे हैं एट कंपनसेटर, सो दिस इनपुट विल एक्ट एज एन डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस की तरह, क्योंकि इनपुट जो था वो हमारा आरएस ये था, आउटपुट ये था, दिस सिग्नल इज इंट्रोड्यूस एज ए डिस्टर्बेंस सिग्नल। ठीक है, तो दीज 5 आर द टाइप्स ऑफ द सिस्टम: compensator, cascade compensator, feedback compensator, cascade and feedback compensator, feed forward compensator, and your disturbance compensator. ठीक है, so this is the theory and the type of the compensator. Compensator is a additional circuit which is introduced in the control system to optimize or to remove the deficiency of the system, and it's are 5 types: cascade, parallel, cascade, feedback and cascade, feed forward, and disturbance compensator. This feedback compensator is also called the parallel compensator. This, okay. So the compensator configuration, the choice between the series and the choice between the series compensator and parallel compensator depends on the nature of the signal. कैसा नेचर है सिग्नल का, पावर लेवल्स क्या है, देन अवेलेबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हम कौन सा डिजाइन करेंगे, सीरीज और पैरेलल। नाउ मोस्ट commonly used compensator which are most commonly used in the control system are of 3 types जो हमें पढ़ने हैं: लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर एंड लीड लैग कंपनसेशन। देखिए, वो टाइप हुआ कि कंपनसेशन को कहाँ लगाना है, सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। अब कंपनसेटर क्या करेगा, कंपनसेटर का वर्क इस ये लीड कराएगा आपके फेज को, या ये लैग कराएगा, या लीड और लैग दोनों का यूज करेगा। ठीक है, so first is your phase lead compensator. So it is a phase lead compensator. It is a sinusoidal input. If a sinusoidal input applied to the input of the network and the steady state output has a phase lead, then the network is called lead network. अगर मैं एक सर्किट ऐसा बनाऊं जो मैं इनपुट पे लगाऊं अगर कंट्रोल सिस्टम के, तो आउटपुट ऑफ दैट कंपनसेटर विल गिव ए लीड और फेज लीड, then the input, if the output is having a lead in the phase with the with comparison to the input, then the network is called lead compensator. For this we use a RC circuit with the parallel of another resistance R. So this circuit is called your phase lead compensator. तो अगर मैं अपने कंट्रोल सिस्टम की बात करूं जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो अगर इस फंक्शन इस सिस्टम का दिस फेज लीड लैग कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन ई नॉट बाई ई वन है, तो अगर मैं एक कंपनसेटर यहाँ लगा दूं जिसका ट्रांसफर फंक्शन ई नॉट बाई ई वन है, और इसके आगे मेरा ये पुराना ट्रांसफर फंक्शन है जी एस, देन आउटपुट, देन योर फीडबैक सिस्टम एच एस, एंड दिस then your input, this feedback element, and R is your input. So this system, this circuit is act as an phase lead. We introduce this circuit over here. So यहाँ पे जो system का input आएगा, after that compensator we get the output as a lead of the input signal. The output signal will lead in the phase with the input signal. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर फेज लीड कंपनसेटर। इसका ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला है, दिस जीएस विल बी 1 प्लस अल्फा टीएस अपॉन 1 प्लस टीएस इंटू 1 बाय अल्फा, जहाँ अल्फा की वैल्यू और टी की वैल्यू हमने ये सपोज करी। ये कैसे निकला है, एक बार आप इसका थोड़ी सी थ्योरी देख लें। इट्स जस्ट यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने यहाँ इस सर्किट में केवीएल लगा, सॉरी केसीएल लगाया है। लेट्स से आई इनपुट इन, देन इसमें लगाया है, तो हम जब इसमें केवीएल लगाएंगे देन योर ई वन विल बी just a minute, let me clear this. And on EI will be I into R1 plus
1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, जब इधर लगाऊंगा तो माई ई नॉट विल बी R2 आई। ठीक है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, माई ई नॉट डिवाइड बाई E1 विल बी I R1 प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन R2i। ठीक है, लाप्लास ले लो, देन इट विल बी IS R1 प्लस 1/c IS इंटीग्रेशन का लाप्लास होता है 1/s अपॉन हो जाएगा R। इधर कर देता हूँ मैं इसे, इट विल गिव E नॉट बाय E1 विल बी IS मैं कॉमन ले लेता हूँ, इट विल बी R1 प्लस 1/CS IS इंटू R2। ये कैंसिल हो जाएगा, देन इट कैन बी रिटन एज R1CS प्लस 1 अपॉन R2CS। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन E नॉट बाय E1 विल बी गिवन एज R1CS प्लस 1 और R2 सॉरी ये आएगा E1 बाय E नॉट, E1 बाय E नॉट R2CS। तो E नॉट बाई E1 अगर हम करेंगे तो इसे दैट विल गिव यू R2CS अपॉन 1 प्लस R1CS। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन आया है इसका, जहां पे हमने एक दो टर्म लिए हैं फॉर लीड कंपनसेटर अल्फा एंड टी। अल्फा और टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन लाइक दिस। यही ट्रांसफर फंक्शन अल्फा और टी की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, वे अल्फा एंड टी आर टू कांस्टेंट्स ऑफ द लीड कंपनसेटर। ठीक है, जिन्हें हम डिजाइन करते हैं। So it's a lab generated experiment. So we need to find the alpha and t, ठीक है, according to the given function given values. So आप अभी के लिए खाली इतना रखिए, the transfer function of this system will be G compensator will be G CS equals to this, where alpha is R1 plus R2 by R2 and my T is R1 R2 C divided by R1 plus R2. ठीक है, then alpha can be determined as 1, alpha will be determined as alpha equals to 1 plus sine phi m upon 1 minus sine phi m, where phi m is the phase angle which we require to maintain। ठीक है, ये कैलकुलेशन इट्स ए बिट इजी कैलकुलेशन, ये इसी से निकली है पूरी, इसी का मैंने एंगल निकाला। जब इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं एंगल निकालूंगा तो इस द एंगल विल बी गिवन बाय दिस, ये एंगल है इसका। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन पे आप ना जाएं, अदरवाइज आप देख भी सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट भी करनी है तो इसका एंगल निकालें। जब मैं इसका एंगल निकालूंगा तो माई फाई विल बी ऊपर से आएगा tan इनवर्स अल्फा टी माइनस tan इनवर्स यहाँ से आएगा टीएस टी ओनली। ठीक है, सो ओमेगा और आ जाएगा इसको जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ से ही मैंने ये वैल्यू निकाली है, दिस अल्फा आई पुट इट एफ एम, देन इसमें tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्म, दिस tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया है, इसको इसमें कन्वर्ट किया, देन उसे साइन की फॉर्म में ले आया हूँ मैं। ठीक है, दिस इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इस साइन को माइनस साइन, ये दिस इज साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को मैं इधर ले गया तो माय फाई एम हो गया, फाई एम से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है। सो यू कैन गो थ्रू दिस डेरिवेशन, अदरवाइज आप सीधे से याद रखें कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस चेंज द ग्राफ ऑफ द सिस्टम। पहले जो ग्राफ था वो ये आ रहा था। अगर मैंने एक लीड कंपनसेटर डिजाइन किया तो मेरा ग्राफ ये आएगा। पहले ग्राफ ये था फेज का, अगर मैंने लीड कंपनसेटर डिजाइन किया तो फेज मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बाद में कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो माय सिस्टम विल बी मोर स्टेबल और मार्जिन मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा।
जो मार्जिन यहाँ पे मेरा इतना था वो मार्जिन मेरा यहाँ पे इतना हो गया फेज मार्जिन, ठीक है। सो द रूल्स टू डिजाइन द लीड कंपनसेटर, डिटरमाइन के टू सेटिस्फाई द स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे कोई अननोन कोफिशिएंट में आपको ऊपर दिस इस टाइप का दिया है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। डिटरमाइन द अनकंपनसेटेड फेज मार्जिन। अनकंपनसेटेड फेज मार्जिन का मतलब आपको यहाँ पे बोर्ड प्लॉट बनाना है एक गिवन सिस्टम का, और वहां से फेज मार्जिन जो अवेलेबल है, जो हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि फेज मार्जिन हम निकालते हैं ओमेगा जीसी पे, आपको याद हो तो, अगर हमने इस तरह से बोर्ड प्लॉट बनाया था, अगर कुछ ये उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट था, ये फेजर प्लॉट था, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा जीसी। इस ओमेगा जीसी से मैंने ये मार्जिन निकाला था फेजर वाले प्लॉट में, दिस इज कॉल्ड फेज मार्जिन। तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन बना जो दिया गया है उससे मैं फेज मार्जिन निकालूंगा। देन आई फाइंड दी फाई एम। फाई एम होता है गिवन मार्जिन जो आपको डिजाइन करना है, जो क्वेश्चन में दिया है कि लेट्स यू हैव टू डिजाइन ए system to produce a 50 degree of phase margin. Then available margin कितना है, जो ये y0 निकल के आया available margin, then margin of safety और safety margin that is 5 degree, ठीक है, ये फिक्स होता margin of safety 5 degree। then फाई की अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब देन उसके बाद कैलकुलेट ओमेगा एम। ओमेगा एम की वैल्यू इज दिस, ओमेगा एम इज दिस, एंड डिटरमाइन टी। देन आपको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देन कंफर्म करना है दोबारा बोर्ड प्लॉट बना के कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है वो सेम आया नहीं आया, फेज मार्जिन सेम अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन इज गिवन, इससे समझते हैं। गिवन ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन जिसका ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको ये दिया है, ठीक है। डिजाइन फेज लीड एलिमेंट टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। स्टडी केवी की वैल्यू दी है आपको, स्टडी स्पीड एरर कोफिशिएंट दिया है केवी इक्वल्स टू 20। फेज मार्जिन दिया है उसका ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ कि फेज मार्जिन जो आपको बनाना है, जो मार्जिन है वो उनको उनको मतलब नहीं है, आपको जो फेज मार्जिन डिटरमाइन करना है और बनाना है दैट इज 50 डिग्री। गेन मार्जिन जो है वो 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो आपने क्या किया, ये अनकंपनसेटेड सिस्टम है, दिस फंक्शन इज अनकंपनसेटेड सिस्टम। पहले तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू निकालोगे फॉर दिस केवी। केवी का फॉर्मूला होता है केवी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस जी एस एच एस, जो हमने सेकंड यूनिट में किया, एस जी एस एच एस। तो केवी की वैल्यू दी है 20 इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस जी एस की वैल्यू है 4k अपॉन एस इंटू एस प्लस 2, एस इंटू एस प्लस 2, एस से एस कैंसिल, तो योर 20 इक्वल्स टू 4k, लिमिट मैंने लगा दी अंदर 0 प्लस 2, सो इट विल बी 40 डिवाइड बाय 4 और 10 आ जाएगी के की वैल्यू, ठीक है। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, माय ट्रांसफर फंक्शन विल बी जी एस इक्वल टू 4 इंटू 10 4k एस एस प्लस 2, और मैं इसे लिख सकता हूँ 40 अपॉन एस एस प्लस 2। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा स्टेप था सेकंड यूनिट का कि केवी की वैल्यू दी है, के की वैल्यू हमने निकाली, तो मेरा नया ट्रांसफर फंक्शन हो गया लाइक दिस, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने बना लिया, ये 20 यहाँ पे आ गया, इन्होंने s प्लस 2 को 2 कॉमन ले लिया और 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब इससे मुझे अपना बोर्ड प्लॉट बनाना है, ठीक। मैं s इक्वल्स टू, बोर्ड प्लॉट कैसे बनाते हैं, s इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करूंगा, देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज एक ही निकल के आएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी ये निकल के आई है, ठीक है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालूंगा और फेजर और बोर्ड प्लॉट इसका बनाऊंगा। उसको बनाने के बाद मेरा जो मार्जिन निकल के आया दैट इज 17 डिग्री, so that is your 17 degree, this margin, this is your margin, phase margin। ये हम आपको पहले बोर्ड प्लॉट का यूज करके ये मार्जिन निकालना होगा। जब ये मार्जिन निकाला तो फाई एम की वैल्यू जो आपको मार्जिन बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में मार्जिन दिया है हमें फेज मार्जिन 50 डिग्री होना चाहिए, अवेलेबल मार्जिन है 70 डिग्री जो हमने बोर्ड प्लॉट से निकाला, 5% एक्स्ट्रा और सेफ्टी मार्जिन हम डालते हैं, 5% ही लेते हैं, 5 से 10% लेते हैं, आप कुछ 5 से 10 डिग्री लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, वी विल कंसीडर 5 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 38, ठीक है। देन दिस 38 को आपने अल्फा में रख के आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। देन इस अल्फा की वैल्यू
अल्फा की वैल्यू निकल आई है, देन यहाँ से आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद अब आपने एक नया कंपनसेशन सिस्टम डिजाइन किया। कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या था मेरा, अगेन मैं लिखता हूँ शुरू में 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा टी एस अपॉन 1 प्लस टी एस। तो अल्फा और टी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो अल्फा टी की वैल्यू निकालने के बाद लाइक दिस माय न्यू ट्रांसफर फंक्शन विल बी 1 अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन अल्फा है, दिस इज 1 अपॉन अल्फा, ये जो पार्ट है ये 1 यानी 1 अपॉन 4.2 1 प्लस, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन को दोबारा से। तो मेरा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है लीड कंपनसेटर का 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा टी एस अपॉन 1 प्लस टी एस। तो अल्फा और टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। अल्फा टी की वैल्यू जो आप रखेंगे आपको, तो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन एक कंप्लीट मिल जाएगा। दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंपनसेटर। तो यही आपको निकालना होता है कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नॉट इस अल्फा को आप यहीं भी लिखेंगे 1, इसी को लेके चलते हैं हम। दिस इज माय फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। इन्होंने इस 1 बाय अल्फा को हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर जो आपको निकालना है, ठीक है। तो एक बार फिर से गो थ्रू लेते हैं इस लीड कंपनसेटर में। तो व्हाट इज कंपनसेटर? कंपनसेटर एक एडिशनल कंपोनेंट होता है जो किसी भी सिस्टम में लगाया जाता है टू लीड और लेट द फेज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लीड कंपनसेटर क्या होता है? लीड कंपनसेटर व्हेन द इनपुट अप्लाइड टू द कंपनसेटर विल बी लीड इन फेज, the output of the compensator will be lead in phase with the input, then it is called a lead network. लीड नेटवर्क के लिए हम आरसी सर्किट यूज करते हैं, जिसमें आरसी सर्किट पैरेलल में होता है आरओसी सर्किट, बट वो सीरीज में ऐड होता है विद रेजिस्टेंस ऑफ R2। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के हमने दो वेरिएबल्स दिए अल्फा एंड टी इस फॉर्म में। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर, ठीक है। आप केसीएल लगा के इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। देन उसके बाद अल्फा की वैल्यू होती है दिस, और ओमेगा की वैल्यू होती है दिस। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी। अल्फा आपने एक बार निकाल लिया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, देन टी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से फ्रॉम दिस। तो अल्फा फर्स्ट, देन सेकंड योर ओमेगा की वैल्यू, देन थर्ड इज योर टी की वैल्यू, आपने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। कैसे इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि आप सबसे पहले अगर कोई के वेरिएबल दिया है तो के वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। देन फेज मार्जिन निकालेंगे यूजिंग बोर्ड प्लॉट ऑफ द गिवन सिस्टम। उसके बाद फाई एम की वैल्यू निकालेंगे। फाई एम की वैल्यू होगी जो मार्जिन आपको बना क्वेश्चन में दिया है कि ये मार्जिन हमें बनाना है सिस्टम का। देन अवेलेबल मार्जिन कितना, माइनस वो प्लस सेफ्टी। देन अल्फा की वैल्यू निकालो, ओमेगा की निकाल लो, टी की निकाल लो, और फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो। तो एक क्वेश्चन ये हमें दिया था जिसमें जी एस इक्वल टू 4k अपॉन एस, एस प्लस 2 है। यहाँ पे हमने पहले हमें दिया है कि योर स्टडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट इज केवी। केवी की वैल्यू से हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद हमने इस ट्रांसफर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, बोर्ड प्लॉट। ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स वही है, आप एस इक्वल टू जे ओमेगा रखोगे, देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालोगे, इनिशियल मैग्नीट्यूड इनिशियल स्लोप निकालोगे और ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो फेज मार्जिन है, दिस फेज मार्जिन इज कम्स अराउंड 17 डिग्री। तो 17 डिग्री अवेलेबल है पहले से ही। तो फाई एम विल बी 50 जो क्वेश्चन में दिया था, माइनस 70 जो अवेलेबल है ऑलरेडी सिस्टम में, प्लस 5 डिग्री। फाई एम की वैल्यू निकली। फाई एम की वैल्यू निकालने के बाद आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा के बाद ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा के बाद आपने टी की वैल्यू निकाली यहाँ इस फंक्शन से, ठीक है। देन आपने फाइनल आपका ट्रांसफर फंक्शन बना दिया कंपनसेटर का। कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन विल बी 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा टी एस अपॉन 1 प्लस टी एस। ये आपका फाइनल कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक है। ठीक है एवरीवन। सो कुछ कमेंट्स है लीड कंपनसेटर पे। लीड कंपनसेटर द स्लोप अराउंड द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। लीड कंपनसेटर से आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो होती है का स्लोप होता है वो इंक्रीज होता है। द क्लोज लूप सिस्टम रेजोनेंट पीक इज रिड्यूस, रेजोनेंट पीक रिड्यूस हो जाता है।
इंक्रीज द ओपन लूप फेज मार्जिन को इंक्रीज करता ही है, लीड करता है. द ओपन लूप बैंडविड्थ आर इंक्रीज्ड एंड दे टेक नो इफेक्ट ऑन द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस. स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को ये कुछ चेंज नहीं करता है, ठीक है. इट ओनली इंक्रीज द phase margin of the system. This is the important part. So this is the use of the lead compensator. ठीक है. नाउ लैग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर में एक ही डिफरेंस है. इफ द स्टडी स्टेट आउटपुट हैव ए फेज लैग, वही पहले आउटपुट जो है लीड कर रहा था, अब लैग कर रहा है, देन द नेटवर्क इज कॉल्ड लैग कंपनसेटर. इसमें जो हमने आरसी सर्किट लीड में यहाँ पे लगाया था, वो आरसी सर्किट सीरीज में आपका पैरेलल में आ गया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आर. सो दिस इज द सर्किट फॉर द लैग कंपनसेटर. इसका भी ट्रांसफर फंक्शन वैसे ही निकाला. मैंने यहाँ पे केवीएल लगाया, यहाँ पे केवीएल लगाया, और ई नॉट बाय this GCS nothing is E naught by E1. E naught और E1 की इक्वेशन निकाली और उसको डिवाइड कर दिया, देन सॉल्व करके मेरी दिस इज माय GCS, फाइनल GCS, और दिस इज आल्सो कॉल्ड E naught by E1. E naught S लाप्लास डोमेन में डिवाइड बाय E1 E इन EIS. ठीक है. अगेन यहाँ पे हमने जो दो टर्म ली बीटा एंड टी, वहां पे हमने अल्फा लिया था फॉर लीड कंपनसेटर, यहाँ पे हमने बीटा लिया है. बीटा और टी की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली है. ये इस ट्रांसफर फंक्शन को ही में पुट करके ये निकाली गई है. इसको R1 प्लस R2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और उसके बाद R2 अपॉन R1 प्लस R2 की जगह यहाँ पे मैंने बीटा रख दिया और नीचे मैंने टी रख दिया. ठीक है. सो this is the, let me clear all this. So for lag compensation, this is the transfer function of the lag compensation जो आपको निकालना होता है. ठीक है. जहां पे t की वैल्यू है ये और बीटा की वैल्यू है ये. अगेन फिर t और बीटा की वैल्यूज इस तरह से निकलेंगी. ये वही फॉर्मूलेज हैं जो हमने पहले भी यूज किए थे. जब हमने अल्फा की टर्म में यूज किया था तो अल्फा विल बी 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई था. बीटा की टर्म में ये अगेन सेम हो जाएगा. दिस विल बी, अगर मैं ये साइन इनवर्स है इसको इधर ले जाऊं तो मेरी माई बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई. इसके स्टेप्स आगे देख लेते हैं. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k. अगेन ड्रॉ द बोर्ड प्लॉट ऑफ द अनकंपनसेटेड सिस्टम. अनकंपनसेटेड सिस्टम का बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करो. देन कैलकुलेट द बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ से. Find the frequency omega C1 from the uncompensated open loop board diagram where the phase margin is satisfied. ठीक है. तो जहां पे जो नॉर्मल आपने ट्रांसफर फंक्शन का अनकंपनसेटेड सिस्टम बनाया है, वहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, जहां पे फेज मार्जिन, जिस ओमेगा की वैल्यू पे आपको फेज मार्जिन निकालना है जो आपका सिस्टम से आता है. फ्रॉम दैट ओमेगा वैल्यू यू विल फाइंड द बीटा वैल्यू. बीटा विल बी tan इनवर्स log ओमेगा सी अपॉन 20. उस बीटा की वैल्यू से आप दो ब्रेक अवे फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे, ओमेगा जेड और ओमेगा बी. एक क्वेश्चन इसका अगेन देख लेते हैं. डिजाइन ए कैस्केड कंपनसेटर टू सर्टिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ के की वैल्यू दी हुई है, आपको फेज मार्जिन दिया हुआ है, और एक क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी दी हुई है. ठीक है. केवी की वैल्यू दी है. केवी का फॉर्मूला होता है एस इन, ये लिखा हुआ है एस इंटू जी एस, लिमिट एस इंटू जी एस एच एस. जीएस की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, जीएस इक्वल्स टू दिस. इसको रख के, और केवी की वैल्यू है 30, तो केवी इक्वल्स टू 30 लिमिट एस इंटू जी एस. यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो के की वैल्यू विल ऑल्सो बी 30. ठीक है. देन अनकंपनसेटेड बोर्ड, आपने नॉर्मल सिस्टम का जो सिस्टम हमें जीएस की ट्रांसफर फंक्शन दिया था दिस, इसका बोर्ड डायग्राम ड्रॉ किया. वहां से विल फाइंड द फेज मार्जिन minus 38.3 डिग्री. ठीक है. तो द सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज नेगेटिव फेज मार्जिन अवेलेबल है. जब आप नॉर्मल फेज मार्जिन निकालोगे बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करके तो नेगेटिव आ रहा है, तो सिस्टम इज अनस्टेबल. तो इस अनस्टेबिलिटी कहाँ पे अनस्टेबल है, उसकी आप ओमेगा C1 निकालोगे, जहां पे ये सिस्टम अनस्टेबल है, जहां से आपको ये फेज मार्जिन मिला है. देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, और बीटा से आप फिर देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा पी. एंड ओमेगा पी
की वैल्यू से आप अगेन अपना ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन विल बी, जो हमने शुरू में निकाला था यूजिंग द आरसी सर्किट, दिस बीटा टी एस प्लस 1 अपॉन टी एस प्लस 1, बीटा टी एस प्लस 1 अपॉन टी एस प्लस 1। बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से है ही है, टी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू 0.02 है और टी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, देन यू विल फाइंड दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर अनकम्पनसेटेड सिस्टम, ठीक है, अनकम्पनसेटेड सिस्टम, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द अनकम्पनसेटेड सिस्टम। इस बात में देखते हैं। सो पहले आई थिंक फॉर टुडे यू शुड गो फॉर द लीड कंपनसेटर। आप लीड कंपनसेटर देखें कि लीड कंपनसेटर क्या होता है, कंपनसेशन क्या होते हैं, कंपनसेशन की डेफिनेशन क्या है, देन लीड कंपनसेटर क्या है, देन इसके रूल्स क्या थे निकालने के, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बस इसमें मैंने आपको बताया इट्स लेंदी बिट लेंदी प्रोसेस, क्योंकि पहले आपको जो आपने ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला के बी की वैल्यू के बाद, इस ट्रांसफर फंक्शन का आपको चेंज द कलर, सबसे पहले आपको इस ट्रांसफर फंक्शन का इस वोट प्लॉट बनाना होगा और उससे फेज मार्जिन निकालना होगा, उसके बाद आपका आगे की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ये सारी टर्म्स लगाई जाएंगी इसमें, कि उसके बाद आप पहले नॉर्मल फेज मार्जिन निकालेंगे जो अवेलेबल है, देन फाई एम की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की निकालेंगे, ओमेगा एम की निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आपको बोर्ड प्लॉट बनाना होगा नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन का, उसके वहां से आपका फेज मार्जिन निकल के आएगा, उस फेज मार्जिन से आप अल्फा एम की वैल्यू निकालेंगे, देन फाई की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद आप टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, नॉट दिस वन नहीं है, टी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप टी की वैल्यू नहीं निकाली हुई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली है, ओमेगा की वैल्यू निकाली है बाय दिस है, देन उसके बाद टी की वैल्यू आप निकालेंगे, देन यू फाइंड दिस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस कंपनसेटर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंपनसेटर। आफ्टर दैट अब लैग और लीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लैग में डिफरेंस ये है कि वहां पे आपका फेज लैग करेगा और लीड में आपका फेज जो है वो इनपुट फेज से लीड करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप इसे अच्छे से देख लें,